صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ پاکستان بھر میں جو اعتکاف ہو رہا ہے، جس میں ہم چند شہروں کے اعتکاف دعوت اسلامی کے آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے آج چلتے ہیں ہم نواب شاہ کی طرف۔ جی زوار بھائی، کیا فرمائیں گے آپ؟ کیسا ہو رہا ہے اعتکاف نواب شاہ میں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی سید عارف اتاری صاحب، پاکستان کے مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف جاری ہے۔ میں موجود ہوں باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر نوابشاہ کے فیضان مدینہ میں، اور یہاں بھی دعوت اسلامی کے تحت پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف جاری ہے۔ سبحان اللہ، اعتکاف کی تو کیا ہی بات ہے۔ یہاں پہ ماشاء اللہ الکریم پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نمازیں سکھائی جا رہی ہیں، قرآن مجید درست مخارج کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، فرض علوم سکھائے جا رہے ہیں۔ زوار بھائی ماشاءاللہ اعتکاف تو ہو رہا ہے، یہ بتائیے مینجمنٹ کیسے چل رہی ہے، شیڈول کیسا چل رہا ہے؟ کچھ ہمیں معتکفین کے زوار بھائی کچھ کمنٹس بھی سنائے نا، یہ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پر، ان سے ہمیں سنوائیے آپ۔ جی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اسلامی بھائی جو یہاں کے پورے جدول کو مینیج کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اس ایک ماہ کے اعتکاف میں کس انداز سے جدول چل رہا ہے، کیا کیا معتکفین کو سکھایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جلال اتاری مدنی۔ محمد جلال اتاری مدنی بھائی، ماشاءاللہ یہاں پہ آپ جدول کو پورے مینیج کر رہے ہیں اعتکاف کے، تو یہاں پہ کس انداز سے کیا کیا سکھایا جا رہا ہے، کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے۔ جی الحمدللہ سحری سے ہی یہ سلسلہ چلتا ہے، نماز تہجد وغیرہ ادا کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا سحری وغیرہ کر کے نماز فجر کے بعد جو ہے نا تفسیر وغیرہ جو وہ پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے نا۔ اس کے بعد جو نگران شورا کا بیان ہوتا ہے، فجر کے بعد نگران شورا کے بیان کے بعد اشراق و چاشت پڑھتے ہیں، اس کے بعد وقفہ آرام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، جس میں تمام اسلامی بھائیوں کو جو ہے نا مدنی قاعدہ اور صحیح حروف کے ساتھ مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر کے بعد بھی سیکھنے سکھانے کا حلقہ رہتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز ہوتا ہے، نماز کے احکام وغیرہ، وضو کا طریقہ، غسل کا، نماز جنازہ عیدین کا طریقہ وغیرہ۔ اس کے بعد نماز عصر کے بعد پھر جو ہے نا اپنا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دعائے افطار ہوتی ہے۔ اس کے بعد نماز مغرب، اور نماز مغرب کے بعد کھانا وغیرہ ہوتا ہے، اور پھر نماز عشاء، اور پھر نماز تراویح وغیرہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ کس انداز سے ماشاء اللہ الکریم جدول چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اگلے سال بھی رمضان المبارک کا جو ہے وہ پورے ماہ کا اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کامران۔ ہاں محمد کامران بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ یہاں پہ پہلی مرتبہ بیٹھے ہیں؟ جی میں پہلی مرتبہ بیٹھا ہوں اعتکاف میں یہاں سندھ نواب شاہ میں۔ ماشاءاللہ بہت سکون مل رہا ہے، بہت دلی سکون مل رہا ہے، روحانی سکون مل رہا ہے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کو ہم سلام کرتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد کو سلام کرتے ہیں کہ یہاں مجھے ایک چیز بہت فائدہ مند ملی ہے۔ مجھے مدنی قاعدہ نہیں پڑھنے آتا تھا، اب مجھے مخارج کے ساتھ میں مدنی قاعدہ 10-11 تختی تک میں پڑھ چکا ہوں۔ الحمدللہ میرا ارادہ ہے 4 ماہ آگے قرآن پاک صحیح پڑھنے کا، اور اس کے علاوہ بہت جو ہے نا یہاں کے نگران ضلع نواب شاہ کے بہت ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، بار بار پوچھتے رہتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اور ماشاءاللہ دین کا کام ہو رہا ہے اور قرآن پاک تلفظ سے سکھایا جا رہا ہے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ ہمارے مرشد کریم کو، امیر اہل سنت کو شاد آباد رکھے، اور نظر بد سے بچائے، اور حاسدین کے حسد سے بچائے۔ جی زوار بھائی، سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں اب تک کیا کیا سیکھا ہے؟ کچھ اسلامی بھائیوں کے کمنٹس ہمیں سنائیے آپ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم موجود ہیں نواب شاہ فیضان مدینہ میں، یہاں پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف جاری ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ یہاں پہ معتکفین کو جو ہے وہ نماز کا عملی پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے۔ راحت کا ہے سامان، مہربان رمضان۔
जी नाज़रीन, ये थे हमारे ज़व्वार भाई। आज हमने नवाब शाह के एतकाफ़ की भी आपको झलकियाँ दिखाई। मज़ीद और शहरों में जो एतकाफ़ हो रहे हैं उनके भी कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको अपडेट देते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। राहत का है सामान, मेहरबान रमज़ान, मेहरबान रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह इस एतकाफ़ में देखें तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफराद जो हैं एतकाफ़ में बैठे हुए हैं। 80 कम व बेश दावत इस्लामी के शोबा जाते हैं, जिसमें डॉक्टर का शोबा अलग है, मेडिकल का अलग है, स्पोर्ट्स का अलग है, राब्ता बरा शोबिस का शोबा अलग है, इसी तरह सहाफ़ियों का अलग बना हुआ है, गूंगे बेरों का अलग शोबा एक दावत इस्लामी का बना हुआ है, जो डेफ हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। दावत इस्लामी दीन इस्लाम की खिदमत कर रही है। प्रोफेशनल लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेज़रनाइन पर इनका 1 माह का एतकाफ़ जारी और सारी हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोफेशनल मजलिस के ज़िम्मेदार भी हैं और इनके मजलिस के अरकान भी हैं, इस शोबे से वाबस्ता अफराद भी हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इतने दिन हो चुके हैं एतकाफ़ में, अब तक इन्होंने क्या पाया? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मैं बिजनेसमैन हूँ। हाँ जी, मेरे कंट्रोल शेड्स हैं, MBA तालीम है कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। आए हैं मैं आप? अलीपुर से हूँ। काफ़ी दिन हो चुके हैं एतकाफ़ में और अब तो रमज़ान बड़ी स्पीड से गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ये महीना इतनी स्पीड से जा रहा है। इतने दिनों में अब तक क्या पाया और मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह आलिमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिलता है। एक जदवल है, एक तरीक़ाकार है सिखाने का। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की सोहबत मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हल्के भी लगते हैं जिसमें सुन्नतें सिखाई जाती हैं, नमाज के अहकाम सिखाए जाते हैं, तिलावत दुरुस्त करवाई जा रही है, मदनी कायदा सिखाया जा रहा है। मेरी बाकी दोस्तों से भी ये इल्तिजा है कि आप लोग भी इधर आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आएँ और आके अपनी आंखों से देखें कि मदनी मरकज़ में आपको क्या मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे नमाज अपनी दुरुस्त की है और यहाँ पे अपना जो कुरान पाक की तिलावत है, जो इसमें किरात है, वो मैंने दुरुस्त किया अल्हम्दुलिल्लाह। और गुस्ल के फ़राइज़, बैतुल खुला में जाने की दुआ, खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ तो एतकाफ़ की नीयत से, तो इससे पहले मैंने एतकाफ़ किया ही नहीं था। मुझे ये सादत भी मिली है कि मैं पहली बार यहाँ पे फैज़ान मदीना में एतकाफ़ के लिए आया हूँ। यहाँ पे जो हमने सीखा है बहुत ही, हमने हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें मदनी मुज़ाकरा, यानी कि मदनी मुज़ाकरा में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर मसले मसाइल जो हैं वो यहाँ पे हमें यानी कि सीखने को मिलते हैं। उसके अलावा हल्का वाइज हमें नमाज के मतलब, वज़ू के मतलब, गुस्ल के मतलब फ़राइज़। मैं नौजवानों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ और आप इस माहौल को देखें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। मेरा नाम मोहम्मद दानिश अत्तारी है और मैं दारुल मदीना बॉयज़ हाई स्कूल मुल्तान में एज अ प्रिंसिपल जॉब कर रहा हूँ। प्रोफेशनल के शोबे के बारे में बताएं कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फैज़ान मदीना में डिफरेंट प्रोफेशंस से आए हुए हमारे पास इस्लामी भाई मौजूद हैं। इनका अलहदा से एक हल्का बनाया गया है जिसके अंदर बिलखुसूस इनकी तरबियत के हवाले से और इन इस्लामी भाइयों को दीन इस्लाम का मुबल्लिग बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन इनके साथ सिलसिले होते हैं और ज़िम्मेदारान के तरबियती हल्के भी लगते रहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। राहत का है सामान, मेहरबान रमज़ान, मेहरबान रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मरकज़ फैज़ान मदीना के में इस वक्त जो है वो आशिकान रसूल आखिरी अशरे के एतकाफ़ के लिए आना शुरू हो चुके हैं और उनके कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जदवल को जो मैनेज कर रहे हैं वो हमारे एजाज मदनी हैं, जो उसके पूरे आलमी मरकज़ के शेड्यूल को जो यहाँ ज़िम्मेदारान अमीर काफ़िला बने हुए हैं उनको ये लीड कर रहे हैं। तो एजाज भाई से अपडेट लेते हैं कि अब तक की क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एजाज भाई ये पहले तो बताएं कि जो 10 दिन का एतकाफ़ है अब शुरू हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं, इसकी पहले फजीलत बताएं क्या है एतकाफ़ की। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की मायनास किताब फैज़ान सुन्नत का एक बाब है फैज़ान रमज़ान, उसमें लिखा हुआ है, जिसका मज़मून अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस शख्स ने आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया, फरमान मुस्तफ़ा उसका मज़मून अर्ज़ कर रहा हूँ,
तो माशाअल्लाह करीम उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। अल्लाह। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो एतकाफ़ करता है उसे हर रोज़ 1 हज का सवाब मिलता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, 2 हज और 2 उम्रे का सवाब आशिकान रसूल हासिल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के एतकाफ़ की तैयारियां ज़ोर और शोर से शुरू हो चुकी हैं। एजाज़ भाई ये बताएं कि कितने एतकाफ़ कर रहे हैं इस बार 10 दिन के लिए? पाकिस्तान में और मकामात पर भी हैं या एक तादाद या एक अंदाज़न आप बताएं, क्या पोजीशन है अब तक? माशाअल्लाह करीम पाकिस्तान भर में हज़ारों मकामात पर आखिरी इशरे के एतकाफ़ का सिलसिला होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी इशरे के एतकाफ़ का सिलसिला होगा। पूरे माह का भी में कहाँ है? 1 माह का तो हो ही रहा था बैरून मुल्क में, कई ममालिक में। 10 दिन के कुछ बताएंगे कहाँ हो रहे? जी, जैसे आपने फरमाया कि पूरे माह का भी एतकाफ़ बैरून मुल्क में हुआ है। आखिरी इशरे के हवाले से बांग्लादेश, यूके, यूरोप, अफ्रीका, इसी तरह दीगर ममालिक भी हैं, उनमें आखिरी अशरे अमेरिका, इसमें भी माशाअल्लाह करीम आखिरी अशरे के एतकाफ़ का सिलसिला होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं, ये यहाँ पर जो डेस्क कायम है और ये पूरा डिपार्टमेंट आपका बना हुआ है, यहाँ पर क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह देखें तरक्की पर तरक्की होती चली जा रही है। पहले एक वक्त था कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगाकर इस्लामी भाई खड़े होते थे और फिर वो फार्म लेकर आते थे, उनको भी आजमाइश होती थी, यहाँ भी आजमाइश होती थी। तो अब ये ऑनलाइन इनका डेटा एंट्री पहले से हो जाता है, यहाँ तशरीफ लाते हैं, तस्दीक होती है और उसके बाद उनको हल्का अलर्ट हो जाता है। तो इस वजह से अभी आपको यहाँ पर ये कम नज़र आ रहे हैं। यानी 2 दिन में तकरीबन 2000 से ज़ायद फार्म हमारे कार्ड बनवाकर इस्लामी भाई जा चुके हैं। अभी 10 दिन शुरू अभी नहीं 10 हुआ दिन शुरू है। नहीं हुए। 2000 कार्ड माशाअल्लाह करीम ये बनाकर इनको पेश कर दिए गए हैं और वो इस्लामी भाई आखिरी अशरे ये में तो बहुत तशरीफ लाएंगे। ज़बरदस्त से पहली बार सुन रहा हूँ 2000 कार्ड इतनी जल्दी माशाल्लाह इनके बन गए। ये इरशाद फरमाया कि ये आलमी मदनी मरकज़ में अंदाज़न जो है इतने सारे लोगों की क्या जगह है, ये जो लोग करेंगे एतकाफ़? जी हाँ, ये इनके आराम करने की, बैठने की, तरबियत की, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एहतमाम किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन आखिरी अशरे में 3 से 4 हज़ार इस्लामी भाई एतकाफ़ करने की सादत हासिल करेंगे, जिसमें से 2000 के कार्ड आज तक के टाइम के एतबार से बन चुके हैं। किन किन शोबाजात से लोग आएंगे आखिरी अशरे? उसमें शोबा तालीम भी है, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेशन भी है, इसी तरह बाकी भी माशाअल्लाह करीम अफराद तशरीफ लाते हैं। राहत का है सामान, मेहरबान रमज़ान, मेहरबान रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद। इंटरनेशनल मरकज़ फैज़ान मदीना के सहन में मैं हाजिर हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर इस्तकबाल कर रही हैं और फैज़ान मदीना में तो हर वक्त रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। बरकतें यहाँ पे आशिकान रसूल जो हैं वो समेटते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता। आशिकान रसूल जो एतकाफ़ में बैठे हुए हैं उन्होंने अपना फ़ितरा यहाँ जमा कराना शुरू कर दिया है। जो मोतकिफ़ीन हैं और जो दुनिया भर में मुझे नाज़रीन सुन रहे हैं, आपसे भी मैं अर्ज़ करूँगा कि अपना फ़ितरा दावत इस्लामी को जमा करवाएं। और फ़ितरे की भी जो है वो कैटेगरीज़ बनी हुई है कि कौन सा फ़ितरे का जो है वो कितना हमें देना होगा। तो अब ये इस वक्त हम इसके स्टॉल पे यहाँ पर हाजिर हुए हैं, इन्हीं से मालूमात लेते हैं। जी बताएं, आटे का क्या हिसाब है पाकिस्तान में फ़ितरे की रकम? 340 है गंदम के आटे पर। गंदम के आटे पर। जी, और जौ पर है 800। जौ पे 800 और खजूर पर जो है 2400 है। और जो अजवा खजूर है उस पर है 14400। अजवा खजूर। और किशमिश पर है 5600। किशमिश पे 5000 जी 600 है जी। अजवा खजूर 14400। 14400। तो अल्लाह ने दिया है हमें इतना, अल्लाह तौफीक दे तो हम अजवा खजूर का ही फ़ितरा अल्लाह की राह में पेश कर दें। अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का फ़ितरा निकालें। दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में इनके स्टॉल लगे हुए हैं। आप इन स्टॉल में जाके वो अपना फ़ितरा जमा करवाएं। राहत का है सामान, मेहरबान रमज़ान, मेहरबान रमज़ान। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में उनके ज़ेरे साया में हम आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। इतने रोज़े रख रहे हैं, तराबियाँ पा रहे हैं, सलातो तस्बीह पा रहे हैं और नींद सोते भी नहीं हम सारी रात। अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नफल पढ़ते हैं, सलातो तस्बीह पढ़ते हैं और टाइम से पढ़ते हैं जमात के साथ, और अशरात और चाशित भी पढ़ते हैं। तो वापस चले जाएंगे छोड़ के फैज़ान मदीना? नहीं, 3 दिन के लिए काफिले में जाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मैं सारे पंजाबी भाइयों को कहना वा तुसी फैज़ान मदीना आ जाएं, यहाँ पर रोज़े रखें, हज़रत साहब का फैज़ लें, यहाँ पर तराबियाँ भी पढ़ते हैं हम लोग, इंशाल्लाह सलात व तस्बीह भी होती है। आपने क्या तब्दीली आई है तुसी ये भी बताओ ना। हम मुझ में तो ये तब्दीली है, ये मैं हज़रत साहब का बैयत हो गया हूँ और दाढ़ी भी रखनी है मैंने, जो मुंडवाई है उसका भी मैं तौबा करता हूँ। मेरे जितने भी नाजरीन मदनी चैनल दे बिरा में सुनते पेन, एक बारी मैं यह तो आखसा कि फैज़ान मदीना दे विच विजिट करो, आओ इत्था इतिकाफ करो, मदनी काफले दा सफ़र करो। बहुत सारे ऐसी चीज़ां जेड़ा जिंदगी दे विच जेड़ा इंसान नहीं सीखदा इत्था सीखण को मिलदे हैं, सुनता सीखण को मिलदे हैं, नवाफिल सीखण को मिलदे हैं। उस तो बाद खाने दे आदाब इत्था सिखाए वे ने, नाल नाल समण दे आदाब क्या हैं वो भी इत्था सिखाए वे ने। वल दूजा सब तो वड्डी गल है कि असां मदनी चैनल दे उत्ते अमीर अहले सुन्नत दी ज़ियारत करने हैं तो बड़े खुश थीने हैं, लेकिन जेड़े वेले बंदा इत्थे फैज़ान मदीना दे विच आके अमीर अहले सुन्नत दी बिल्कुल डायरेक्ट सामने बह के ज़ियारत करेंदे तो दिल मदीना मदीना थी वेंदे। मैं ही गल सारियां को जेड़ा जेड़ा इत्था नाजरीन मदनी चैनल में सुनदा पे, मैं इया उन्हां दे अगों गुजारिश करे सां कि तुसां एक बारी फैज़ान मदीना आओ, इत्था दे मनाजिर देखो, इत्था कने किवें इतिकाफ कराया वेंदे, किवें इत्था कने पूरा निज़ाम बनया होया है। इतनी बहुत ज़्यादा तादाद है जिहड़ी इतिकाफ वास्ते आई हुई है। माशाअल्लाह दिल खुश थी वेंदे देख के कि इवें बिरा बिरा बन के आपस दे विच रहन, समझे भी हैं इत्था कने भावें खाना भी खानन, कहीं तू मैं तू तुणा वाली ये जी बोली कहीं कह नहीं सुनी। मदीना आके तो सड्या वेंदे एक बे को, अगर कहीं को गलती भी थी वने फौरन हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिन, और कहीं दा शुक्रिया अदा करना होवे दा हूँ वेले आदन जज़ाक अल्लाह खैरा। जो मस्जिद में झाड़ू देता है उसके दिल की भी सफाई हो जाती है। मस्जिद की सफाई बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ पर खादिमीन अल्हम्दुलिल्लाह दिन में भी, शाम में भी, रात में भी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं जो फैज़ान मदीना की में झाड़ू दे रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। आइए इसके मनाजिर आप देखिए। राहत का है सामान, मेहरबान रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। इस वक्त हम फैज़ान मदीना इंटरनेशनल मरकज़ ऐन मस्जिद के अंदर हाजिर हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि आशिकान रसूल को पहली सफ़ की इतनी फ़िक्र है कि पहले से ही आज़ान से पहले ही पहली सफ़ जो है वो भर चुकी है, और ऐसे आशिकान रसूल हैं कि वो पहली सफ़ के हरीस हैं। और यकीन करें कि यहाँ ज़ौक़ इतना मिल रहा है कि कुरान पहली सफ़ में पढ़ा जा रहा है। और ये सामने जो आप जगह देख रहे हैं मेरे, ये वो जगह है जहाँ ज़माने के वली अमीर अहले सुन्नत यहाँ बैठ कर मदनी मुज़ाकरा करते हैं। रोज़ाना अमीर अहले सुन्नत यहाँ पर जो तशरीफ़ फरमा होते हैं, फजर के बाद भी आपकी आमद हो रही है, असर के बाद यहाँ मदनी मुज़ाकरा हो रहा है, फिर तरावी के बाद आप यहाँ मदनी मुज़ाकरा करते हैं। आशिकान रसूल की बहुत बड़ी तादाद जो है इस जगह पर जमा होकर मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करती हैं। याद रखें कि यहाँ पर आ जाना फैज़ान मदीना में ये बहुत बड़ी सआदत मंदी है, क्योंकि ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। रमज़ान का महीना अब हमसे बड़ी तेज़ी के साथ जुदा हो रहा है। एक बड़ी तादाद ऐसी होती है कि रमज़ान जब जुदा होता है तो वो मस्जिदों से दूर हो जाती हैं, नमाज़ें वो नहीं पढ़ पाती और शैतान भी आज़ाद हो जाता है। एक काश कि हमें नमाज़ों में इस्तिक़ामत मिल जाए, रमज़ान के बाद भी हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो। जब तक हम ज़िंदा रहें हमें नमाज़ों में इस्तिक़ामत मिलती रहें, और जब हमारी मौत का वक्त करीब आए तो जुमा का दिन हो, रोज़े की हालत में मदीने में ईमान व आफ़ियत की मौत नसीब हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। आज का एपिसोड मुकम्मल हुआ। कल नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे और इंटरनेशनल मरकज़ की आपको नई अपडेट पेश करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। रमज़ान फिरत का